Hello students, I welcome you in our science class. As you know that we are studying chapter number 5 coal and petroleum, and today's topic we are going to discuss is destructive distillation of coal. So what is the meaning of this term? Destructive means to break, किसी चीज को ब्रेक करना, किसी सब्सटेंस या मटेरियल को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या उसकी जो दूसरी फॉर्म से उसमें तोड़ देना. And distillation means what? Distillation is the process in which we are changing the substance into the form of gas by heating it. कोई भी लिक्विड है या सॉलिड सब्सटेंस है उसको हमने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन अप्लाई द कूलिंग प्रोसेस एंड गेट बैक द लिक्विड फॉर्म, और उसके बाद हमने उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में ले लिया या उसकी दूसरी फॉर्म में हमने ले लिया. तो वी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. तो आज हम जिस चैप्टर टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोल को हीट करके और हम उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स हम उससे डिस्टिलेशन प्रोसेस से ले सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे. टू अंडरस्टैंड बेटर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी इन दिस वीडियो. Arrange the apparatus as shown. The horizontal glass tube contains some crushed pieces of coal, while the vertical glass tube is filled with some amount of water. Heat the coal over a burner. On strong heating, it produces colorless vapors which enter water filled in the other tube. After some time, a few of these vapors condense to form black viscous layer below the water level. This is called coal tar. While some other vapors get dissolved in water to form a colorless layer above the coal tar layer. This colorless layer is called ammoniacal liquor, as it mostly contains dissolved ammonia. Lastly, the unreacted vapors are released through the outlet of this tube called coal gas, which is combustible. The material left behind in the horizontal tube is called coke. Coke contains about 60% of carbon. When hot steam is passed over coke, carbon in the form of coke reacts with water vapors to form a mixture of carbon monoxide and hydrogen, which is called water gas. It is used in the manufacture of hydrogen gas. Coal gas. Coal gas is mainly a mixture of methane along with hydrogen, carbon monoxide, and other gaseous hydrocarbons, and is used as an industrial fuel. Ammoniacal liquor is mainly used to manufacture fertilizers. Coal tar is mainly used in the manufacture of dyes, insecticides, medicines, artificial yarn, etc. So as you seen in the video, the destructive distillation of coal, with the help of this video we can understand the definition. सबसे पहले हम definition देखते हैं. It is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. यहाँ पर आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने एयर का कहीं यूज़ नहीं किया, यानी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है. एब्सेंस ऑफ एयर में हमने उस कोल को ब्रेकिंग अप किया था, और हमें जो प्रोडक्ट्स वी हैड फाउंड दीज आर कॉक विच इज़ रिमेनिंग बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब. जो टेस्ट ट्यूब में बच जाता है वो ही कॉक के फॉर्म में चला जाता है, यानी हमने पाउडर कोल जो था उसको हीट किया था, और वो कोल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, कॉक में कन्वर्ट हो गया. कॉक के अंदर जो इट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कार्बन, ये प्योर फॉर्म में आ जाता है. देन हमने देखा कि इससे कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे. कोल गैस प्रोडक्ट उसमें से निकला. कोल गैस जो है वो मिक्स नहीं होता है इसके अंदर. जब यहाँ से आप देखिए बंसन बर्नर की हेल्प से जब
कॉल पाउडर को हीट किया था तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकले थे, कुछ धुएं के फॉर्म में कुछ निकला था, और वो किस में से पास हुआ, इस पासिंग ट्यूब में से गया, और उसके बाद वो कॉनिकल फ्लास्क में जहाँ पर वाटर पहले से प्रेजेंट था उसके अंदर एक पार्ट उसका चला गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो वाटर में चला गया वो तो उसके अंदर मिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्वर फॉर्म, और जो वहाँ पर रिमेनिंग वापस गैसियस फॉर्म में ही रहा वो जो है कॉल गैस होता है। और आपने देखा है कॉनिकल फ्लास्क के जो बॉटम में ब्लैक कलर का लिक्विड है दैट इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्वर। इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी आपको दिखाया गया है जो आपकी बुक में भी है। कोल इज कन्वर्टेड इनटू द कॉक, कोलतार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस। अब ये देखिए व्हाट इज कोल गैस। It is a mixture of the some gases like hydrogen gas, carbon monoxide gas and methane gas. And one more gas is mentioned here, ethylene. तो इसमें से जो तीनों गैसेस हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज एक्सीलेंट फ्यूल। कोल गैस जो है इन तीनों का मिक्सचर है, तो ये एक्सीलेंट फ्यूल की तरह काम में आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और एक कलरलेस गैस है ये। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर, सपोज अभी तो हमने पढ़ा कि ये जो है एब्सेंस ऑफ एयर में हुआ था, सपोज प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर कोल को हीट किया जाए तो बर्निंग प्रोसेस होता है, कंबशन होता है। कंबशन होने पर कोल का क्या होगा आपको पता है, कोल तो मिक्सचर है, बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन सल्फर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मेनली इसमें कार्बन कंटेंट होता है। दिस कार्बन इज चेंज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द हीट। तभी तो हम देखते हैं कि कोल को जब भी हम गर्म जलाते हैं, गर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है स्मोक की तरह और हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट के को ही हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर सम हीटिंग प्रोसेस, जो हम चीज़ को गर्म करते हैं। सो इट इज़ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स वन बाय वन। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज कॉक। इट इज़ अ टफ porous ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। टफ का मतलब बहुत हार्ड होता है, पोरस होता है, इट मीन्स इसके अंदर स्मॉल पोर्स हैं जो कि गैसेस के एवापोरेशन के लिए होते हैं, और ग्रेइश ब्लैक कलर का हो जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर, अबाउट 98% कार्बन। ये वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट है, पर ये जितना ज़्यादा कार्बन इसमें होता है, ये जो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज है वो डिपेंड करती है कॉक पे। यूजेस देखिए, इट इज़ यूज एज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। फिगर 5.6a आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें बताया है कि किस तरह से ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, और बड़ी बड़ी वहाँ पर फर्नेंस होते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उनके अंदर इसको जलाया जाता है जिससे कि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। कोक इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अपन ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स वाले में कि ओर्स से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज़ में भी मेटलर्जी के लिए भी अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो कोक को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू अदर गैसेस। ये इंडस्ट्रीज़ में जब इसको यूज़ करते हैं तो इस कोक से हम दो गैसेस बनती हैं। एक तो प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं CO+N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ में, एंड वन मोर गैस इज ऑल्सो यूज देयर दैट इज CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये दो तरह की गैसेस को भी बनाने में हमारे को हेल्प करता है। तो देर आर सम यूजेज, मेनली कॉक के जो यूजेस हमने देखे ये इंडस्ट्रियल यूजेस ही थे। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज कोलतार। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोलतार विच इज़ ब्लैक विस्कस कलर। विस्कस का मतलब थोड़ा थिक और गाढ़ा लिक्विड है ये। आपने देखा भी होगा, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, डामर जिसको हम कहते हैं, ये कोलतार ही होता है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है। इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ नॉट अ
सिंगल सब्सटेंस, ये कोई एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ मोर देन 348 टाइप्स के कंपाउंड्स इससे बन जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो हम उनके बारे में भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Now see, the coal tar contains more than 348 types of chemical compound. इसके अंदर मिक्सचर है, बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स इससे बनते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी एक तरह का डिस्टिलेशन प्रोसेस है। और एक फ्रैक्शनल कॉलम में जब हम इस कोलतार विस्कस लिक्विड को हीट करते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स इसमें से फॉर्म होते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जब पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या प्रोसेस होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि एक फ्रैक्शनल यानी कि एक फ्रैक्शन बना दिए जाते हैं, कॉलम्स बना दिए जाते हैं और इस लिक्विड को एक फर्नेंस में हीट करते हैं। जब बहुत तेज़ हीट करते हैं तो इसकी बहुत सारी फॉर्म बनती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वापस से उसको डिस्टिल करते हैं यानी उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग दोनों होता है। अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम्स होते हैं, उनमें ये प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं, जैसे टोलुइन दिखता है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है एंड फिनोल है। मेजरली यही वाले प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके भी कुछ और यूजेस हैं, जैसे दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग डाइज। आपने देखा होगा तरह तरह के आपको कलर्स दिखते हैं, पेंट्स के कलर दिखते हैं, डाइज दिखती है, इंक जो है ये भी डाई है और बहुत सारे तरह के जो कलर्स आपको दिखते हैं। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ टोलुइन एंड बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन में से एक खुशबू आती है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी का हाइड्रोकार्बन है। और इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसका फुल फॉर्म होता है। ये टोलुइन से बनने वाला एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो कि काम आता है। और जो पेंट्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं बेंजीन रहता है, ये एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है जिससे कि हमें पेंट्स के अंदर खुशबू आती है। जो भी आप देखते हैं वॉल पेंटिंग वगैरह होती है इसमें कुछ स्मेल सी खुशबू सी आती है। इससे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स भी बनते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। नेफ्थलीन जो है उसकी नेफ्था बॉल्स बनती है, जो कि आपने देखा होगा कि हम इन नेफ्था बॉल्स को अपने क्लोथ्स वगैरह के बीच में रखते हैं जिससे कि फंगस वगैरह के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। इनसे नई नई तरह के जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो भी इसमें बनते हैं, उनके अंदर भी इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। रूफिंग मटेरियल्स ऑल्सो, कई जगह पर हम जो रूफ़ का मटेरियल है, रूफ़ को कवर करने के लिए इस तरह के मटेरियल को कोलतार से बनने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो दैट वाज अबाउट द कोलतार। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोल गैस। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मैंने आपको पहले ही बताया इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंबस्टिबल गैसेस, जो कि हाइड्रोजन है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोल गैस हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका रीज़न अगर पूछा जाता है कि वाई इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड वाई इट इज़ एक्सीलेंट फ्यूल, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसेस हैं। दैट्स वाई दिस मिक्सचर ऑफ गैस कोल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, इससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि जब आप उसको स्मॉल अमाउंट में भी बर्न करेंगे तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। दैट्स वाई इट इज़ यूज एज एक्सीलेंट फ्यूल। और एक और प्रोडक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है अमोनियम कंपाउंड्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ कोल, अमोनियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस देयर एंड व्हेन दिस material is dissolved in water, that is called ammonical liquor. इट मीन्स जो ये प्रोडक्ट बनता है, कोई गैस जो बनती है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया गैस उसमें से फॉर्म होती है, लेकिन बिकॉज ये वाटर में मिक्स हो जाती है, क्योंकि हमने कॉनिकल फ्लास्क में वाटर रखा था और उसमें ये मिक्स होकर के एक अमोनिकल लिक्वर का फॉर्म करती है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। इसके बाद में हमने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बारे में जानना है कि ये कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने में या कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने में ये यूज़ में आता है। तो दैट्स वाई आई कैन नाउ से दैट कि आपने आज जो इस में समझा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के मेनली
फोर पार्ट्स आपने देखे. पहला था कोल गैस, कॉक, कोलतार, एंड वन मोर इज अमोनियम कंपाउंड्स. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस. एंड नाउ आई वुड लाइक टू से ऑन द पेज 78 इस पर कुछ कुछ MCQs क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियोस. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में. थैंक यू.